Hello guys, in the last videos we were discussing or studying about the chapter number 12th and the exercise 12.2 we have already completed in the last video. Now I'm starting a new exercise of the same chapter, same content, but the examples and the questions are different, which is the exercise 12.3 for the class 10th standard from our RBRC syllabus. So before the starting of this exercise, one theorem is there, which is the theorem number 12.8. So first of all, I will explain what is the theorem and what is the proof of this theorem. So the statement of the given theorem is, you can check it from your book. Statement is the angle subtended by an arc at the center. चलो मैं लिख देता हूँ. It is theorem 12.8. The an angle subtended by an arc at the center of a circle is double of an angle subtended by same arc on circumference in same side. So this is the statement of the theorem number 12.8. Theorem is an angle subtended by an arc at the center is double of an angle subtended by same arc on circumference in same side. तो ये देखो, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो सकती है. हो सकता है कि मैंने स्मूथ लैंग्वेज यूज ले ली हो, लेकिन समझने में जो स्टेटमेंट इसका जो मीनिंग है वही मीनिंग उस थ्योरम का है जो आपके बुक में है, और किसी एडवाइजर में आरबीएससी की प्रॉपर बुक में इनका स्टेटमेंट थोड़ा चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है. अब हमें ये प्रूव करना है, तो चलिए सबसे पहले तो अपन एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. शो हो जाएगा शायद, चलो थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ. Let's suppose this is a circle. Assume O is the center of the circle, and I am taking AB, an arc, which is subtending an angle AOB at the circumference. ठीक है? An angle subtended by an arc at the center of a circle is double of an angle subtended by same arc on the circumference पे, इधर नहीं, ऊपर की साइड, सेम साइड में. चलो मान लेते हैं ये एंगल बनाया. ठीक है, ये तो बना सेंटर पे और ये बन गया सर्कमफरेंस पे. ये पॉइंट बना लेता हूँ P ले लो, क्यों ले लो, A B और O को छोड़ के कुछ भी ले लो. और हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल जो होगा, दिस एंगल इज डबल ऑफ दिस एंगल. क्लियर? इक्वल नहीं है, इक्वल का सिंबल में समझ आना है. फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन वैल्यूज, गिवन दैट according to the structure arc AB is forming two angles
एंगल AOB and angle APB. According to the structure, arc AB is forming or subtending two angles, angle AOB and angle APB. क्लियर है? हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव we have to prove that this angle AOB is double of angle APB. एंगल AOB इज डबल ऑफ एंगल APB. ये हमें प्रूव करना है. इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. जॉइन PO एंड प्रोड्यूस इट अप टू द पॉइंट यू मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद. जॉइन PO and produce it up to point Q. This is the point Q. क्लियर? ये हमें प्रूफ कंस्ट्रक्शन हुआ अपना. अब हमें इसका प्रूफ स्टार्ट करना है. प्रूफ देखो, इन ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल OAP, इन ट्रायंगल OAP ध्यान देना, OA is equals to OP because radii of same circle या फिर radii of a circle. Clear? Therefore, triangle OAP is an isosceles triangle. ये ट्रायंगल का सिंबल लिया मैंने, आप लिख ले रहा हूँ. ट्रायंगल क्या रहा? OAP in this one and this one are equal, so therefore OAP is an isosceles triangle. तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं इसको एंगल 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ. लेट्स सपोज दिस इज द 3 एंड इट इज 4. ठीक है? एंगल 1 इज इक्वल्स टू, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल A. लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. आई होप सो यू अंडरस्टैंडिंग. क्लियर है बात यहाँ तक? अब ध्यान से और देखो, इन दोनों का सम किसके इक्वल? ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हुए. सिमिलरली इन ट्रायंगल OPB, OB is equals to OP. The same reason is here because these are also the radii. So therefore angle B is equals to angle 2. Angle 2 is equals to angle B. Let's suppose this is the equation number 2. क्लियर है यहाँ तक? अब हमें ये पता है इन दोनों का सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल. ये थ्योरम 9th स्टैंडर्ड में थी, ट्रायंगल्स से रिलेटेड एक चैप्टर था, उसमें सम ऑफ एनी टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल्स इट एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, है ना? तो मैं वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज ले रहा हूँ. प्रॉपर्टी क्या रहेगी? वी नो दैट हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं एंगल 1 प्लस ए. 1 प्लस ए देखो इस टाइप से बनेगा. ये 1 हुआ, ये ए हो गया, इसके इक्वल होगा सम ऑफ टू एंगल्स. एंगल 1 प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल 3. और यहाँ पे नीचे रहा ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी, ट्राइंगल्स एंगल प्रॉपर्टी. क्लियर? अब एंगल ए हमें ए से कोई मतलब नहीं, हमें तो 1, 2 और 3, 4 चाहिए. तो एंगल ए की जगह मैंने 3 रखा, सॉरी 1 रख लेते हैं यहाँ से. सो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3. ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3. लेट्स इट इज द इक्वेशन नंबर 3. और ये यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका रीजन फ्रॉम फर्स्ट.
एंड नेक्स्ट थिंग व्हाट वी कैन से, सम ऑफ बी प्लस 2, इन दोनों का सम 4 के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल ये इसमें 2 प्लस बी, एंगल 2 प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल बी इज also 2 is equals to angle 4, so twice of angle 2 is equals to angle 4. Let's suppose this is the equation number 4th और ये मैंने लिया है from second equation. क्लियर है? थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दो। ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। क्लियर है? 3 प्लस एंगल 4, 2 is common, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का मतलब हो गया एंगल P, है ना, जो हमें प्रूव करना है। कहीं तो लिखा होगा हमने, ये रहा, तो इसको बोल सकता हूँ एंगल APB, ट्वाइस ऑफ एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस 4, एंगल 3 प्लस 4 का मतलब हुआ एंगल AOB, एंगल AOB चेक कर लो। नाउ मैच इट विद दिस स्टेटमेंट, AOB is equals to twice of APB, hence proved. So this is the proof of our theorem number 12.8. I hope so you understood. Now I'm starting the next exercise 12.3 from the very first question. So before that, pause the video and note it down. So this is the very first question of the exercise 12.3. Question is write true false for each of the following and write here region also for behind it. So first two type false, true and false type question you have to solve yourself, and if you are feel any kind of the difficulty, then notice to inform it to me. I'll try to explain all the doubtful questions. Now I'm starting directly from the question number 2nd of the exercise 12.3. A structure is given. A structure is given in which O is the center. जनरली सर्कल का सेंटर O से डिनोट किया जाता है, AC, and this is the another point, it is the point B, and this is an angle, and it is given that this angle is 45 degree. Then prove that OA is perpendicular on AC. हमें ये प्रूव करना है OA and OC both are perpendicular to each other. देखो रिसेंटली अपन ने ये डिस्कस किया था कि एक सेम आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल इसका डबल होगा, तो ये 45 है तो ये कितना होगा 90, और यदि ये 90 है तो ये कितना होगा 45। हमें ये प्रूव करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल OA या फिर AO is perpendicular on OC. This statement we have to prove. अब देखो ध्यान से समझना, we know that angle AOC is twice of angle ABC. रीजन लिखना होगा एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क, इसका रीजन हो गया। अब ट्वाइस ऑफ एंगल एंगल AOC is equals to twice of angle ABC is 45 degree, implies that AOC is equals to 90 degree. अब ये एंगल कितना हुआ 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, सो देयरफॉर AO is perpendicular on OC, और जो कि हमने प्रूव कर दिया। बहुत सिंपल सा फंडामेंटल था। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज O is circumference of circumcircle of a triangle ABC. एक ट्रायंगल दे रखा है ABC,
ABC is a triangle. सरकम सेंटर का मतलब ये होता है कि a point at which the perpendicular bisector of minimum two sides will intersect each other of a triangle. मीन्स ये ट्रायंगल है, इसकी कोई दो साइड, मैंने ए बी और ए सी को सेलेक्ट किया, इनकी साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, मान लो कि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एट इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये इस पॉइंट को बोलेंगे सर्कम सर्कल. और सर्कम सर्कल का मीनिंग क्या होता है? सर्कम सर्कल इज सर्कम सेंटर, ये सर्कम सेंटर हुआ, सर्कम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस. तो ये यहाँ से और यहाँ से ये इक्विडिस्टेंस होगा. क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखो इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है? एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस बी सी. हम ये डी मान लेते हैं, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बेस बी सी. इट मीन्स बी डी इज इक्वल्स टू सी डी. क्लियर? प्रूव दैट एंगल बी ओ डी, बी ओ डी एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल ए, इज इक्वल्स टू एंगल ए. मीन्स ये जो एंगल होगा वो एंगल इसके इक्वल होगा. तो मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है अभी सर्कल. आप इमेजिन कर लेना कि ये परफेक्ट सर्कल है. बोर्ड पे इजी नहीं होता बनाना बिना किसी मेजरमेंट के. ठीक है, हमें प्रूव करना है एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू ए. तो पहले तो टारगेट को मेंशन करते हैं. टू प्रूव एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू बी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल ए. और मैं इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, या एक काम करते हैं पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं. हमें जो दे रखा है ये कर लिया होगा, मैं यहां से रेज कर रहा हूं. गिवन दैट according to the structure O is circumcenter of triangle ABC and D is midpoint of BC. D क्या रहेगा? BC का मिड पॉइंट होगा. इट मीन्स BD इज इक्वल्स टू CD. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अब देखो आगे डिस्कस करते हैं. ये मान लेना ये मिड पॉइंट है, हमें जो प्रूव करना है ये कंस्ट्रक्शन बाद में रखेंगे. इसको इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो, ये हटा लो. टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल BOD, एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल A. ये हमें प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन एंगल जॉइन OC, जॉइन OC को ज्वाइन करना है हमें. ज़्यादा टिपिकल मैटर नहीं रहेगा, समझ में आ जाएगा, इजी रहेगा. अब देखो जो हमें पता है, पहले तो हमें ये पता है कि ये जो आर्क है, आर्क BC इज फॉर्मिंग एन एंगल एट सेंटर एंड द अनदर एंगल एट द सर्कमफ्रेंस. तो ये जो एंगल होगा एंगल BOC इज डबल ऑफ एंगल A. बोल सकते हैं भाई अपन प्रूफ. वी नो दैट एंगल BOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल A. और इसमें मैंने सेम थ्योरम यूज लिया जो यहाँ पे लिया था, तो मैं ये ला रहा हूँ यूजिंग थ्योरम. अब वो कौन सी थ्योरम थी वो आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क ऑफ द सर्कमफरेंस इन सेम साइड. तो मैंने ये थ्योरम यहाँ पे यूज ली है. BOC, तो इसको एक बार इतना रहने दो. अब हम BOC को स्प्लिट करना है, हमें BOD एंड DOC चाहिए. ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, ये 2 इधर ले आता हूँ, या फिर चलो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं.
अब हम इन दोनों ट्रायंगल में कैसे भी ये दोनों एंगल इक्वल करने हैं, क्योंकि हमें तो ये एंगल चाहिए ना बी ओ डी। तो फ्रॉम ट्रायंगल बी ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, बी ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, रीजन रेडियाई ऑफ ए सर्कल। कोई प्रॉब्लम नहीं। बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, इट इज गिवन। यहां से देखो डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देन बी डी इज इक्वल्स टू सी डी। नेक्स्ट क्या होगा, ओ डी इज इक्वल्स टू ओ डी, ओ डी इज इक्वल्स टू ओ डी रहा, तो ये अपने पास है कॉमन ट्रिपल एस क्राइटेरिया of congruency. What we can say that triangle BOD is congruent to triangle COD. Both of the triangles are congruent. Congruent हुए तो ये दोनों corresponding angle equal होंगे, BOD angle equals to COD. So therefore using by CPCT, angle BOD is equals to angle COD. बात समझ में आई यहाँ तक? अब इसका मतलब क्या हुआ, बी ओ डी इज इक्वल टू सी ओ डी हुआ, तो मैं अब इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट राइट इज एज इट इज टू बी ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए। बी ओ सी को स्प्लिट करो, बी ओ सी को स्प्लिट करेंगे तो बी ओ डी प्लस डी ओ सी, सो एंगल बी ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए। अब देखो बी ओ डी की वैल्यू कितनी है, सी ओ डी। बी ओ डी तो रहने दो क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, सी ओ डी को कन्वर्ट कर लो बी ओ डी में, एंगल बी ओ डी एज इट इज प्लस डी ओ सी, और सी ओ डी बोथ आर सेम, तो इसकी जगह पे ये अप्लाई कर सकता हूँ एंगल बी ओ डी विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए। देयरफॉर दिस एंड दिस टू एंगल बी ओ डी is equals to twice of angle A. This cancel by this, by this. So finally answer is angle BOD is equals to angle A as proved. तो ये अपना प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड सेकंड का। अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। Now I'm starting the next question, question number fourth of the exercise 12.3. But before the starting of this question, one theorem is there, which is we can say that it is the sub theorem of the theorem number 12.8. जो अपन ने रिसेंटली एक theorem डिस्कस किया था कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल होगा सर्कमफरेंस पे बने हुए एंगल के। तो हम एक काम करते हैं, इसके रिगार्डिंग एक सब थ्योरम होती है, मैं पहले उसको क्लियर करता हूँ। देखो समझना ही है, बस ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा ये। देखो आप ये मान लो डायमीटर है, डायमीटर सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का। क्लियर है बात यहाँ तक? तो बेसिकली मैं इसको ए बी डायमीटर मान लेता हूँ, तो ए बी इस ये पॉइंट पी ले लेता हूँ, तो ए पी बी एक कोड भी तो हो गई है कि नहीं? ए पी बी इज ऑल्सो कॉल्ड ए कोड, तो ये कोड हुई, तो ये कोड सेंटर पे बना हुआ एंगल एक कोड आर्क हो गई है। ये आर्क जो है ये सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इससे सेम डायरेक्शन में सर्कमफ्रेंस पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, इसका हाफ। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ दिस एंगल, तो ये एंगल जितने का भी उसका डबल ये होगा, तो ये 180 का तो इसका हाफ होगा, तो ये कितना होगा 90 डिग्री। तो हम इसके इस मैटर पे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन अपने पास ये रहता है कि टू ट्राइंगल्स हैं एक कॉमन हाइपोटेनस के साथ में, टू ट्राइंगल्स आर देयर। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या रहेगा, ऑन ए कॉमन हाइपोटेनस ए बी, एक हाइपोटेनस दे रहा। हाइपोटेनस होने का मतलब ये हो गया कॉमन है दो ट्राइंगल्स के लिए, तो इनके ऊपर 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। हाइपोटेनस तभी पॉसिबल होगा कि 90 डिग्री के एंगल बने। ए कॉमन हाइपोटेनस ए बी टू राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी एंड ए डी बी। ए बी कोई कॉमन हाइपोटेनस हो गया, इसके ऊपर ए सी बी एंड ए डी बी
टू ट्राइंगल्स आर फॉर्मिंग ड्रॉन सच दैट दे लाई ऑन द अपोजिट साइड, मीन्स दोनों ही अपोजिट साइड्स में है ना, अपोजिट साइड्स, देन प्रूव दैट एंगल BAC, दिस वन एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BDC। क्या बोल रहे हैं, BAC इज इक्वल्स टू एंगल BDC। ये कैसे पॉसिबल हुआ, एंगल BDC ये तो नहीं होना चाहिए था। लेट मी चेक अगेन, एंगल BAC ACB and ADB drawn, prove that angle BAC is equals to angle angle BDC, इसके इक्वल प्रूव करना है। वहाँ पे थोड़ी शायद प्रॉब्लम है, नहीं वो सही था, वो मेरे पढ़ने में मिस्टेक हो गई, मैं BDC इसको कंसिडर कर लिया, BDC मीन्स हमें ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखो हमें ये पता, इसको यदि मैं डायमीटर कंसिडर करूँ तो एक ऐसे सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। तो पहले मैं इसका एक ये रफ डायग्राम कंसिडर कर सकते हैं अपन। इसको फेयरली ड्रॉ करना चाहूँ तो अपन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, पहले ही सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और ये AB को डायमीटर कंसिडर कर लिया। लेट AB इज ए डायमीटर। एक तो ये ट्रायंगल बन गया जो कि D हो गया, और सेकंड ट्रायंगल इज दिस वन। क्योंकि यदि ये 180 का है तो ये 90 का होगा सर्कल के केस में, और एक 90 और एक 180 दे रखा, तो डेफिनेटली ये सर्कल पे सिचुएटेड है। ये एंगल है 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। हमें प्रूव करना है एंगल CAB, दिस वन इज इक्वल्स टू एंगल BDC। इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। क्लियर बात यहाँ तक। चलो फिर मैं इसका सेंटर ये मान लेता हूँ, लेट O इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। क्लियर बात यहाँ तक। एंड जॉइन OB एंड OC, ये मैंने ज्वाइन करवा दिया। अब देखो मैं रैपिडली एक्सप्लेन करता हूँ, आप खुद से करना, जो भी दे रखा है आप मेंशन कर लोगे। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। कंस्ट्रक्शन अपने क्या किया, टेकिंग O एज द सेंटर आई जॉइन OB एंड OC, OB को ज्वाइन करवा दिया और OC को ज्वाइन करवा दिया। ठीक है यहाँ तक। अब देखो मैं सीधा प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। आर्क CB से ये एंगल बन रहा है सेंटर पे, और आर्क CB से ये एंगल बन रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि एंगल एंगल BOC सेंटर पे बना हुआ एंगल BOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो इसके डबल हो जाएगा एंगल BAC के, ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली रीजन आप लिख लोगे, रीजन क्या, एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क ऑन द सर्कमफरेंस। अब देखो इसी आर्क पे बात करते हैं, तो ये एंगल बन रहा है सर्कमफरेंस पे और ये एंगल बन रहा है सेंटर पे आपके। तो अगेन एंगल BOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल BDC। दोनों इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। व्हाट वी कैन से दैट ट्वाइस ऑफ एंगल BAC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल BDC। ये से कैंसिल हुआ, रिजल्ट क्या है, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BDC। और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था।